हाय स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज चैप्टर 4 क्लास 9। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चैप्टर का नाम समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल? एंड दिस चैप्टर विल कम इन class 10 as well, where it will be a pair of linear equations in two variables. तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज मस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन क्या होती है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है ना लीनियर वर्ड। सो लीनियर इक्वेशन मीन्स, हाँ जी काफी बच्चों को समझ में आ गया। लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है डिग्री 1। ओके, सो डिग्री 1, आप में से कोई बच्चा एग्जांपल देना चाहेगा लीनियर इक्वेशन का? वेरी गुड, 2x plus 5 is equal to 0. So this is a linear equation because here the variable is x and its power is 1. Degree is 1. Then equation का meaning, equation होता है आपका ये जो equal to का symbol दिख रहा है आपको यहाँ पे, this is your equation. Then in two variable, so any of the alphabet can be considered as variable. अब यहाँ पे हमें चाहिए linear equation in two variables. So basically we will use one variable as x and other as y. You can take any alphabet, but most of the questions we will solve with x and y. So let's give some example. सोचो बहुत सारे example आपके दिमाग में आ रहे हैं ना? हाँ जी, 2x plus 3y is equal to 7. So this is one of the example of linear equations in two variable. देखो linear degree 1 verify हो रही है, then equation equal to का symbol आपको दिख रहा है, then third two variable x and y will behave as two variable. So this is the example of linear equations in two variable. Now firstly we will discuss the standard form of linear equation. तो linear equation की जो standard form होती है वो हमारी होती है ax plus by plus c is equal to 0. अब इसको हम फिर से लिख रहे हैं, hurry up, write it with me. ax plus by plus c is equal to 0. So this is called standard form. Standard form of linear equation in two variable. Standard form अगर हमें नहीं दी होती किसी equation में तो हम उसको standard form में convert कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी जो एक दो conditions actually necessary हैं, that is variable जो यहाँ पे a और b, basically coefficient of x and coefficient of y, they can't be equal to 0 at the same time. ठीक है, they both can't be equal to 0 at the same time. एक बार में एक 0 हो सकता है, तो उसको हम अभी डिस्कस करेंगे कैसे। तो आपको क्लियर हो गया, तो a और b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इन दैट केस ax plus by plus c is equal to 0. Here a, b and c, ये जो आपको कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स दिख रही हैं, these are all real numbers. ठीक, these are all real number. तो अब हम लोग एक ये वाला जो टाइप है इसको थोड़ा सा रुक के करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। मैंने जो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा था, एन एग्जाम्पल, सो कैन यू राइट दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म? अरे बहुत सारे बच्चे बोले मैम हम करके दें। हाँ जी, आप मुझसे पहले कर सकते हैं। सो दिस इज 2x plus 3y minus 7 is equal to 0. टन 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 हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को अगर ये बोला जाए व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a, b and c, what will you say? A is coefficient of x. So what is the value of a here? A is equal to 2. And then what is b? B का मतलब होता है coefficient of y. So this is बोलो 3. Then what is the constant term c? It is minus 7. In the first exercise of NCERT, firstly we will have to write the linear equation in two variable in the standard form, and after that we will find the values of a, b and c. Clear? Let's start. So this is the first expression given to you. Compare it with the standard form. Standard form का मतलब होता है ax plus by plus c is equal to 0. अब याद रखना, मैं बार बार एक इक्वेशन इसलिए बोल रही हूँ, when you actually wind up this video, I want you to learn this standard equation. Okay? ध्यान रहेगा। चलो अब कौन कौन बच्चे मेरे साथ बोलने को रेडी है? Very good. ax plus by plus c is equal to 0 is the standard form. So 1 mark question can come on this concept. So this is 4.1 exercise NCERT. Now this is the equation. X by 3 minus 4y is equal to minus 6. In this equation, is it in standard form? No.
because the constant is on right side. We have to shift all the terms on the right side and there will be a zero on the right side. तो firstly write it in the standard form. तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्या होती है? हाँ जी, अभी तो मुझे लग रहा है मेरे से पहले बच्चे बोल रहे हैं. ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. हम हर पेज में नियरली 2 to 3 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे. अब देखो ये मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया क्योंकि -6 राइट साइड पे था, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई. वाओ. अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी. अब यहाँ पे ध्यान रखना ए, बी और सी जो होगा दिस इज न्यूमेरिक कोएफिशिएंट. तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? बच्चे बोल रहे हैं हमें तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है x का कोएफिशिएंट क्या है. सो बेटो यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 3 है. तो x डिवाइडेड बाय 3 जो होता है बेसिकली दिस इज 1/3 इनटू x. ओके, 1/3 इनटू x. सो दिस इज जस्ट सेम एज x by 3. तो अब पता चला व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x. इट इज 1/3. वेरी गुड. देन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y? y कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम 4, बट नो नो, थोड़ी सी एरर है, करेक्ट करो. तो दिस इज -4 नॉट 4. तो हम लोग जो ये नेगेटिव साइन है ये साथ में लगाते हैं. अब आप बोलोगे मैम 1/3 में तो हमने कुछ ऐसा साइन नहीं लगाया था. बिकॉज व्हेन आई डोंट राइट एनी साइन इट मींस इट इज पॉजिटिव ओनली, बट if it is negative then we have to mention. Now what is the constant term? This is 6. What is the constant term? This is 6. So देखो जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म भी हो गया, एक नंबर मिल गया हमें. अब नेक्स्ट पे मूव करें. दिस इज द कांसेप्ट ऑफ 4.1 एक्सरसाइज. ओके, क्वेश्चन सेम नहीं होंगे. एनसीईआरटी इन अ डिफरेंट ड्रेस. ओके, सिमिलर टू एनसीईआरटी है बट नॉट एनसीईआरटी एक्चुअली. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं. दिस इज 0.5x प्लस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे मेरे को कांस्टेंट टर्म तो दिख नहीं रही है. तो अगर आपकी कोई भी टर्म मिसिंग होती है तो उस वाली टर्म को हम 0 से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. For example, what is the standard form of this one? Yes, I got the answer. 0.5x plus 3y. हाँ जी, है नहीं ना कांस्टेंट c, तो यहाँ पे आप उसको लिख दोगे 0 and this is equal to 0. If you don't want to write, then you will not be able to write it in the standard form. So it's better to write it in the standard form using introducing this 0. फिर से वही क्वेश्चन आ गया हमारा. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स a, b एंड द कांस्टेंट टर्म c. कांस्टेंट टर्म तो हमने इंट्रोड्यूस किया ना 0 के साथ, तो दिस इज 0 ओनली. क्लियर? एंड व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x? x का कोएफिशिएंट चेक करो जल्दी से जल्दी से. वेरी गुड, दिस इज डेसिमल 0.5. डेसिमल है तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. कांस्टेंट होना चाहिए. इट कैन बी डेसिमल, इट कैन बी इररेशनल, इट कैन बी फ्रैक्शन, एनी. Then what is the coefficient of y which will give us value of b? It is 3 only. Okay, so values of a, b and c are 0.5, 3 and 0 respectively. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें. नाउ द इक्वेशन दैट वी हैव इज 1/2x minus 4/3 sorry y/3 is equal to √3. Is it in standard form? Now we will convert it in the standard form. अभी एक नंबर चाहिए भी और करना भी नहीं है तो कैसे बात बनेगी यार. So this is 1/2x. अभी कौन बच्चा मुझे बताएगा 1/2x को एक और तरीका कौन सा होता है लिखने का? Yes, yes, I'm on my ears. Yeah. हाँ जी, 1/2x को हम x/2 भी लिख सकते हैं like we have in this first question. Okay, so both are same thing. It will not make any difference. So the value of a, coefficient of x is 1/2. कभी कभी कोई बच्चा गलती से क्या बोल देते हैं 1/2x. So please फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ. a is numeric coefficient, x साथ में नहीं आएगा. This is coefficient of x only. Then what is the value of b? b -1/3. देखो यहाँ पे अब आपको y के नीचे 3 दिख रहा है, लेकिन अगर आपका ऊपर कुछ कांस्टेंट नहीं दिख रहा तो इट इज 1/3. ओके, एंड नाउ व्हाट इज c? दिस इज -√3. कुछ बच्चे आई थिंक आपस में बातें कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं यहाँ पे तो रूट आ गया. इज इट? यस, इट्स पॉसिबल. हमने क्या बोला था? a, b and c आर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में आपके रैशनल्स भी होते हैं, इररेशनल्स भी होते हैं. So √3 is fairly good. Okay जी, so we have done
बातों बातों में 3 क्वेश्चन है ना जी, मजा आया। नेक्स्ट पेज पे अब सेम यही काम करना है। जिस बच्चे को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई है, नेक्स्ट शीट वो बच्चे खुद से करेंगे। यू कैन होल्ड माई वीडियो एंड वंस यू डन यू कैन चेक योर आंसर्स। अभी यहाँ पे हमारा ये जो 2 पार्ट्स बचे हैं, इनको अभी मैं थर्ड स्लाइड से पहले रिलेट करूंगी। ओके, express the following equations in the standard form and then write the values of A, B and C. So there is no difference in this question and the question that we did on the last page. But यहाँ पे हमारा 1 मार्कर का सवाल है, 1 नंबर हमें चाहिए, तो I don't want you to miss that mark. तो चलिए प्रैक्टिस। अब जो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज डू इट बाय योरसेल्फ। मेरे से पहले पहुंच जाओ, मजा आ जाएगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, बोलो बोलो बोलो, हाँ जी, सब कुछ ऑन दी लेफ्ट साइड। सो इट इज एक्स y, y को अगर मैं लेफ्ट में शिफ्ट करूंगी इट विल बिकम माइनस y एंड ऑन द राइट इट इज माइनस 0.47 एंड देयर इज अ बार ऑफ 47। सो आई माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा 0.47 एंड 47 के ऊपर बार आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0। So this is the standard form of this equation. Okay. Now, what are the values of A, B and C? तो वैल्यू ऑफ ए का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं है, कुछ बोल रहे हैं 0 इसका आंसर है। सो हेल्प करो मेरी, क्या होना चाहिए? यस बेटू, अगर आपके एक्स के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो दिस इज बी 1 नॉट 0। 0 का मतलब है वहां पे कोई टर्म नहीं होगी। ओके, अगर x का कोएफिशिएंट नहीं होता तो 1 होता है, दिस इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो हम 1x लिखते नहीं हैं। बट अगर आपको सिर्फ x दिया जाता है तो इट इज अंडरस्टूड दैट दिस इज 1 टाइम्स ऑफ x, तो एक 1 हो जाएगा। b बिल्कुल सेम है, मतलब कुछ भी नहीं दिया हुआ, y एज इट इज दिख रहा है तो y का कोएफिशिएंट 1 होगा ही होगा, और साथ में ये नेगेटिव साइन जाएगा। अगर ये नेगेटिव साइन भूल दिया तो then c का मतलब होता है कांस्टेंट। वेरी गुड वेरी गुड, यस दिस इज 0.47। अब फिर से मुझे कुछ कुछ सुन रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम 47 के ऊपर बार है। अरे भैया क्या हो गया, बार है तो दिस इज योर रिपीटिंग डेसिमल एंड दिस इज योर रैशनल नंबर। होने दो ना, अच्छा है ना, मजा आ रहा है। चलिए जी नेक्स्ट पे पहुंचे। अब इसमें आई डोंट थिंक तुम मुझे कुछ बोल पाओगे, सिंपल इक्वेशन दी है। हाँ तो क्या हो गया, रूट टू पिछले पेज पे भी तो करवाया था, अब हर बार क्या एक ही चीज करवाएंगे? हाँ जी, मूव करो। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं 3x माइनस 5 प्लस रूट टू वाई, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आप करने को तो कर ही सकते हो, लेकिन आपको जब मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है, तो फर्स्ट आपकी x की टर्म होती है, फिर आपकी y की टर्म होती है और फिर आपका कांस्टेंट होता है। अगर आप इस सीक्वेंस में काम नहीं करोगे तो chances are you will misinterpret the values of the ABC। चाहते हो वो करना? इतनी आसान क्वेश्चन में ना बाबा ना। 3x माइनस रूट टू वाई, शिफ्टेड शिफ्टेड शिफ्टेड, माइनस का हो जाएगा प्लस रूट टू वाई। तो मैं हर जगह x लिखूंगी, फिर y लिखूंगी, फिर कांस्टेंट लिखूंगी। तो आपकी मर्जी है, जो बच्चे बहुत स्मार्ट बिहेव कर रहे हैं लाइक दे थिंक दे कैन, यस यू आर वेलकम यू कैन। बट अभी आप स्टार्टिंग जब स्टेज होती है तो कोशिश करो स्टेप स्किप मत करो। तो आपका a x का कोएफिशिएंट 3, b y का कोएफिशिएंट रूट 2 एंड c कांस्टेंट टर्म दिस इज माइनस 5। we got the answer as A, B and C. May I repeat? A is 3, B is root 2 and C is minus 5. चलिए जी आगे बढ़ी। अरे ये कैसी इक्वेशन आ गई है, यहाँ पे तो मुझे सिर्फ 2 टर्म्स दिख रही हैं। अगर 2 टर्म्स दिख रही हैं और मुझे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? I will introduce the term with 0। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कौन सी टर्म आप 0 के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, बोलो कौन सी टर्म? Yes, we have x, we have constant, but we don't have y. So we will introduce the term y with 0. Okay, we will write it 0 dot y, 0 into y. So 0 into y means 0. So that is only the fiction. Okay, आपको दिखेगा but actually वहाँ पे कोई term नहीं है, तो इल्यूशन है। हम लोगों ने इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सॉल्व करने के लिए ऐसा किया है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, प्लस 0 into 1 and 22 that is a constant and we will shift it on the left only. So this is equation
pi x plus 0y minus 22 is equal to 0. Got it बेटा जी? तो जो टर्म यहाँ पे हमारे पास मिसिंग थी, we introduce that term with the help of 0 because 0 into anything will be 0 only. तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली टर्म लिखूं चाहे ना लिखूं, it will not make any difference to my given actual equation. Okay, and this is just the illusion reason we have to show the equation in two variables. Okay, got the point? Yes, beta g. Now, what are the values of a, b, and c? It is pi, coefficient of x. It is 0, coefficient of y, and it is minus 22, coefficient, no, constant term. So next question, come on, come on. अब next question में कभी कभी बच्चे ये बोलते हैं राइट साइड पे दो टर्म्स है, लेफ्ट साइड पे एक टर्म है ना, तो क्या मैं सबको राइट साइड पे मूव कर दूं, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, आपको ना स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर दिखानी है। तो आप इसको 0 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी भी लिख सकते हो। और हम लोग, मैं जैसे करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं वाई को शिफ्ट कर दूंगी, तो दिस इज एक्स माइनस 3/7, पूरा का पूरा कोएफिशिएंट लेके जाना, कहीं 3 और 7 में से कुछ भूल जाओ। 3/7y, basically I shifted y on the other side and the two terms is on their place only. तो y को अगर मैंने शिफ्ट किया है तो the other side will become 0. ओके, नाउ इसी सेम क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते थे, दैट इज, बोलो, हम इसको ऐसे कर सकते थे, माइनस एक्स, बेसिकली आई एम शिफ्टिंग द टू टर्म्स ऑन द लेफ्ट साइड, माइनस एक्स प्लस 3/7y minus 2/3 is equal to 0. एंड प्लीज ध्यान दीजिए, दीज टू आर जस्ट सेम, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली एक नेगेटिव कॉमन लेके कैंसिल किया हुआ है। So whether you give answer from this form ABC or you will answer from this form, but it will be same. So this will not make any difference. Completely your choice. कुछ होना चाहिए ना हमारे पास भी ऑप्शन। तो देखिए, अब A x का कोएफिशिएंट इज 1, B y का कोएफिशिएंट -3/7 and C the coefficient constant term, this is 2/3 only. ओके, अब अगर मैं यहाँ से सेकंड वाली इक्वेशन से लेती तो मेरे सबके साइन रिवर्स आ रहे थे, बट दैट इज कंप्लीटली वैलिड बिकॉज ऑन द राइट साइड देयर इज 0 एंड वी कैन कैंसिल वन नेगेटिव थ्रू आउट द इक्वेशन। गॉट इट? हाँ जी, अभी मैं आपको आफ्टर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ टेस्ट एज वेल, बट ऑन डिमांड। जो बच्चा मुझे कमेंट करेगा, टेस्ट की डिमांड करेगा, ओनली दोज विल गेट द टेस्ट एंड आई मेक श्योर दैट विल बी एक्चुअली योर गुड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे कुछ कुछ ट्विस्ट दिख रहा है। क्या ट्विस्ट है? समझो समझो, मैं आपको इक्वेशन रीड कर देती हूँ। दिस इज 5x minus 2y is equal to x plus 1. 5x minus 2y is equal to x plus 1. So ध्यान से देखो, here x is 2 times, y is 1 time and 1 is your constant term. But आपका यहाँ पे x 2 time आ रहा है, तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? Yes, we can manage this ना। हम इस x को इधर ले जाके माइनस कर देंगे, तो 5x minus x minus 2y and 1 आपका लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, तो -1 is equal to 0. Is it in the standard form? No, 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 no. You have to operate the first two terms. So 5x minus 1x will be 4x and minus 2y minus 1 is equal to 0. What is the answer? Very good. बहुत जल्दी आप लोग समझ गए। x का वैल्यू, x का कोएफिशिएंट a 4, y का कोएफिशिएंट b -2 and the constant term is -1 only. Yippee, we've done this page. तो हम लोगों ने अभी लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो समझा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन को लिखना सीखा एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म निकालना सीखा। तो हमने अभी ये तीन चीजें यहाँ पे समराइज की। क्लियर बच्चा? चलिए, अब हमारा फर्स्ट पेज पे एक छोटा सा टॉपिक था, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बोल रहा है इक्वेशंस ऑफ द टाइप ए एक्स प्लस सी are also examples of linear equations in two variables because they can be written as ax plus 0y plus c is equal to 0. Now some of the students are saying, ma'am, we have already used this in the next page. Hanji beta ji, so I hope this is very much clear. If any variable is missing or the constant term is missing, we can introduce with 0. Okay, next हम लोग करेंगे the solutions of linear equation. तो process of finding the solution
is called solving an equation, and a linear equation in two variables can have infinite many solutions. अब अगर मैं आपसे एक छोटा सा टीजर क्वेश्चन पूछूं क्लास 8 से, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशंस होते थे? अरे दिमाग की बत्ती चली 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 चली। हाँ जी, देयर वाज ओनली अ सिंगल सॉल्यूशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिंगल सॉल्यूशन होता था, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते ही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, तो समझे? अभी हम मैजिक करेंगे। ओके, हम लोग सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे एंड वी आर एबल टू फाइंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. So this concept, basically finding the solution of linear equation, is your 4.2 exercise based concept. In this we will find different solutions. So NCERT में हम लोगों को ना up to 4 solutions निकालने को बोला है, तो यहाँ पे हम 4 solutions तक पे काम कर लेते हैं. अगर आपको लगे कि हाँ आपको पेपर में 3 solutions या 2 solutions पूछे गए हैं, वर्क अकॉर्डिंगली. बट हाँ 4 से ज्यादा तो चांसेस कम ही है कि पेपर में पूछेंगे. और अगर आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने आ गए तो उससे ज्यादा निकालने को बोला जाएगा तो मुझे लगता नहीं है कोई बच्चा ऐसा होगा जो निकाल नहीं पाएगा. ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं है, लेकिन इसमें मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाने की जरूरत भी नहीं है. क्लियर? जब भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सॉल्यूशन निकालना होता है ना, तो दो जो सॉल्यूशन आपको बहुत हेल्पफुल रहते हैं, आप एक बार x को 0 पुट कर दीजिए, एक बार y को 0 पुट कर दीजिए, उससे आपका आंसर बहुत जल्दी आता है. तो फर्स्ट यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस निकालने की टेंडेंसी रखेंगे. तो इस इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x को ले लेते हैं 0. ठीक, अगर मैं यहाँ पे x को 0 लूंगी तो y प्लस 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5. ठीक, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड किया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5. सो दिस इज ऑर्डर्ड पेयर. हमने चैप्टर 3 में किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. value of x that is abscissa and value of y that is ordinate, and this is ordered pair in which abscissa will come first and then comma and then ordinate. abscissa ordinate का जो order होता है वो reverse नहीं हो सकता. तो ध्यान रखना, अगर आप इसको उल्टा लिख देते हो तो आपका आंसर जरूरी नहीं है गिवन इक्वेशन को वेरीफाई करें. नेक्स्ट हम यहाँ पे सेकंड सॉल्यूशन को पिक कर रहे हैं. सेकंड सॉल्यूशन के लिए हम लोग अभी अभी जैसे मैंने बोला, आई विल प्रेफर x 0 at one time and then y 0 the other time. In that case we will get the solution that we can plot on the axis. तो वो अभी हम थर्ड एक्सरसाइज में ग्राफ प्लॉटिंग में करेंगे. तो पहले हम सॉल्यूशंस निकालना सीख रहे हैं, क्योंकि ग्राफ प्लॉटिंग के लिए भी यही वाला पॉइंट काम देगा हमें. अब देखो y को 0 डालूंगी तो देखो ना यहाँ पे x प्लस वाई 5 है, और हम यहाँ पे y को अगर 0 डाल देते हैं तो यस x इज 5. अगेन देखो ऑर्डर्ड पेयर में लिखना, पहले आप x की वैल्यू लिखोगे और फिर आप y की वैल्यू लिखोगे. So this is by chance both the coordinate abscissa and ordinate are interchanging their place, but it need not to be necessary all the time. So please be very careful while writing ordered pair. चलिए जी, हम नेक्स्ट क्या लें, x को हम 1 ले लें. अगर मैं x को 1 लेती हूँ तो 1 प्लस वाई जो है मेरा 5 है, और अब ये वाला जो y है ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट. तो 5 माइनस 1 विल गिव मी 4. 5 माइनस 1 विल गिव मी 4. तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4. तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई 1 एंड y की वैल्यू आ गई मेरे पास 4. तो 1, 4 is the solution, and you know these solution when we put in the given equation they will satisfy the equation. For example, say if I write x1 and y4. देखो x को अगर मैं 1 पुट करूं, y को मैं 4 पुट करूं, 1 plus 4 5. So yes, it is satisfying this condition. So any of the solution that we are finding here will actually satisfy the condition. And what if it doesn't satisfy? It means this is not the solution. Am I clear? If it doesn't satisfy, it means this is not the solution. एक और ट्राई करें, अब क्या होगा. चलिए जी, अब x की वैल्यू 2 ले लीजिए. अब x की वैल्यू अगर मैं 2 लूंगी तो 2 प्लस वाई जो है वो हमारा 5 के इक्वल है. तो y कितना हो जाएगा हमारा, 5 माइनस 2, दिस इज 3. 5 माइनस 2 इट इज 3. ठीक है बच्चा. तो वी आर हैविंग डिफरेंट सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंट वेरिएबल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और. बच्चे बोल रहे हो आप हर बार x की वैल्यू ले रहे हो, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग द वैल्यू ऑफ y? It's okay, I can assume value of y as well. पहले इस ordered pair को यहाँ लिख दूँ 2, 3.
कुछ बच्चे लग कह रहे हैं आपको नहीं आता क्या वो करना, पता नहीं आता है कि नहीं, करके देख लेते हैं, अगर हो गया तो आप साथ में बैठे हो तो हो ही जाएगा वैसे भी। चलिए y को क्या ले लूं मैं, y को 1 ले लूं। अगर मैं y को 1 लूंगी तो मेरा x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अरे आंसर आ गया, मुझे तो डाउट हो रहा था आंसर आएगा कि नहीं, बट आप लोग साथ में हो तो आंसर तो आना ही था। आंसर क्या आया हमारा, पहले x और फिर y। So देखो these values are interchanging. When x is 0, y is 5. When y is 0, x is 5. When x is 1, y is 4. When uh, x is 4, then y is 1. So these values are interchanging. So it's completely fine and all these 5 values are satisfying the given condition. So you need not to worry. Correct answer निकले हैं हमारे। अब next हमारा question number 2। हर क्वेश्चन में मुझे एक्चुअली 4 सॉल्यूशंस चाहिए। तो 4 सॉल्यूशंस के बाद अगर आप कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन निकाल देते हो तो इट्स ओके। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। जनरली जब हम क्लास में काम करते हैं ना, मैं बच्चों को बोलती हूँ पेज वेस्ट मत करो, पेज वेस्ट मत करो, द पेजेस आर एक्चुअली इक्वल टू ट्रीज। तो अभी मेरा यहाँ पे भी ना पेज वेस्ट नहीं करनी है मुझे। करें स्टार्ट। पहला पहला रूल, सबसे पहले आपको क्या बताया, x को भी 0 लो, y को भी 0 लो। The only condition if we take x and y zeros and that give the decimal such that that would be difficult to plot, in that case we will avoid, otherwise I would always recommend 0 point। ठीक है ना बच्चा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं x is equal to 0। अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो 2 into 0 will be 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब ये 2 इंटू 0 तो बेसिकली ये वाली तो स्पेस खत्म नहीं हो गया ना, 0 इंटू समथिंग विल बी 0। अब यहाँ पे से मेरा ये जो 4 है ये राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10/4 एंड वी कैन कट इट इन द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। सो दिस इज 2 5 2 2 so 5/2। If you want, you can write it in the fraction form, and if you are interested, you can use the decimal as well. So इसमें डेसिमल मेरा हो जाएगा 5 का हाफ 2.5। चलिए जी हम नेक्स्ट लॉट ऑफ आंसर्स जो है वो यहाँ पे बनाएंगे। नेक्स्ट लॉट ऑफ आंसर में हमारे पास आ रहा है when we put x is equal to 0, y is y/2। ओके क्लियर, फ्रैक्शन में आंसर आ रहे हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज। उसके बाद जैसा कि हमने बोला था y को हम 0 लेंगे। अब अगर मैं y को 0 लेती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 2x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 10। तो 0 इंटू समथिंग विल बी 0, सो दिस इज एक्चुअली नो डिजिट हियर, ओनली 0। अब ये वाला 2 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 10/2 एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 0 5 नहीं है, इट इज 5 0। प्लीज ध्यान रखो 5 0 5 0 5 0। पहले x which is abscissa, then ordinate which is 1। चलिए नेक्स्ट पार्ट ले। अब 0 0 तो मेरे खत्म हो गए, अब मुझे क्या लेना है, तो बेसिकली आई कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यू। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, y को 1 ले लेती हूँ। अगर मैं y को 1 लूंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 2x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। अब ये जो 4 इंटू 1 है, 4 1 4, ये राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x मेरे पास आ जाएगा 10 माइनस 4। 10 माइनस 4 कितना होता है बेटू, 6। और यहाँ से 2x की वैल्यू अगर हमारी 6 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/2 विच इज 3। तो नेक्स्ट हमारा आंसर आ रहा है 3,1। अब यहाँ पे आप x को भी एज्यूम कर सकते हो, y को भी एज्यूम कर सकते हो, एंड यू कैन फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल। ओके, तो इसमें ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप हमेशा x की वैल्यू क्यों एज्यूम कर रहे हो या y की। आपको मैंने यहाँ पे दोनों तरह से एजम्पशन करके दिखा दिया है। देखो यहाँ पे x को एज्यूम किया था, फिर y को एज्यूम किया था, सिमिलरली यहाँ पे x को एज्यूम कर चुकी हूँ, y को एज्यूम कर चुकी हूँ, अब फिर से मैं x को भी एज्यूम कर सकती हूँ। तो दिस इज कम्प्लीटली माई चॉइस। ओके, तो अब मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, x को 3 ले लेती हूँ। ये वाली चीजें पेपर में जरूरी नहीं है इतना इजी क्वेश्चन आए पेपर में, हो सकता है आपको डेसिमल फॉल हो जाए। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक डेसिमल आया था ये वाला पार्ट, बट स्टिल आई विल टेक सम मोर क्वेश्चन इन विच वी विल गेट डेसिमल आंसर। सो व्हेन वी टेक x 3, देन दिस इज 2 इंटू 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, ये 2 इंटू 3 क्या होता है, 6। 6 यहाँ की क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। तो 10 माइनस 6 कितना होता है, 4। और ये वाला 4 फिर यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड विच इज इक्वल टू 1। सो द फोर्थ सॉल्यूशन इज व्हेन x is 3 y is 1। I got the same answer
So actually this answer didn't help me because when I took y as 1, I have already got x as 3. So this answer actually didn't help me. तो हम लोग यहाँ पे एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं. हम क्या ले लेते हैं, x को हम लोग ऐसी वाली वैल्यू ले लेते हैं जो अभी तक हमारे पास यहाँ पे नहीं आई हो. तो हम यहाँ पे x को क्या ले लेते हैं बच्चा, बोलो. -2 ले लो, -2 ले लो, या फिर -1 भी ले सकती हूँ. हाँ जी, आपको नेगेटिव वैल्यू भी तो लेनी आनी चाहिए ना. नेगेटिव वैल्यू भी तो आपको हेल्प करेंगी. तो आप यहाँ पे -2 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो. तो x की प्लेस पे मैंने लेना है -2. तो यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा और हमारा आंसर वेरी कर जाएगा. ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी गेट द सेम आंसर और हम उसके लिए ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे. तो देखो x की प्लेस पे आप डाल दीजिए -2. ठीक है. अब ये 2 2 जा 4, -4 हो जाएगा. तो ये हमारा यहाँ पे -4 राइट साइड पे आके +4 हो जाएगा. So this will be 10 plus 4, 14 divided by 4, and this is 7 by 2. And if you want, you can convert it into fraction, and if you want it, leave it like this only. So -2 and 7 by 2 are the required answer. -2 and 7 by 2 are the required answer. ठीक है, पक्का. अगर आपका बाय चांस कोई आंसर सेम आ जाता है तो आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. सो 3 1 was the third and -2 के अगेंस्ट y की वैल्यू आ रही है 7. एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है -4x इज इक्वल टू y. अब ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना होगा, हमें यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म दी नहीं हुई है. और अगर हमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दी हुई है तो हम कांस्टेंट टर्म को इंट्रोड्यूस जीरो से कर सकते हैं. लेकिन मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं ना. मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं चाहिए एज सच. तो आपको यहाँ पे जो कांस्टेंट मिसिंग है उससे एक नई चीज सीखने को मिलेगी. लाइक इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा. तो x 0 डालने से -4 इंटू 0 0 हो जाएगा. तो y विल ऑल्सो बी 0. तो when there is no constant in the equation, x 0 के लिए y भी 0 होगा. और 0 0 जो हमारा पॉइंट होता है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, ओरिजिन. तो आपकी जो लाइन है जहाँ पे कांस्टेंट मिसिंग है दैट विल पास थ्रू ओरिजिन. ठीक. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन ऑलरेडी आ गया है. x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ध्यान से देखो, -4x इज इक्वल टू y दिया हुआ है. तो अगर मैं यहाँ पे x को वैल्यूज देती जाऊंगी तो आई विल गेट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y. तो x को मैं 1 दे देती हूँ. तो इस केस में आपको डिफरेंट अदर वे राउंड लेने की जरूरत नहीं है. x को आप 1 ले लो. अगर मैं x को 1 लेती हूँ तो -4 इंटू 1 विल बी 4 ओनली एंड y की वैल्यू आ जाएगी -4. तो सेकंड सॉल्यूशन मेरे पास आ गया 1 के अगेंस्ट -4. उसके बाद थर्ड सॉल्यूशन पे मूव करते हैं. x की वैल्यू को ले लेते हैं -1. देखो हम प्लस माइनस 0 सब तरह की वैल्यूज को ट्राई कर रहे हैं. तो x की वैल्यू ले लो -1. अब -1 इंटू -4 कितना होगा, -1 इंटू -4 इट इज 4 ओनली. तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 ओनली. तो आपका नेक्स्ट आंसर आ गया -1 के लिए वैल्यू आ जाएगी 4. एंड फोर्थ सॉल्यूशन एक और ट्राई करें. व्हाट वुड यू लाइक टू टेक. सम स्टूडेंट्स आर सेइंग मैम सीक्वेंस में ही चल पड़ते हैं, 2 ले लो. तो अगर मैं x को 2 लेती हूँ कैन आई राइट y डायरेक्टली विदाउट मल्टीप्लाइंग. यस. -4 into 2, so this is -8. So the fourth answer will be, fourth solution in fact you can say will be 2, -8. So these are the 4 solution for the third equation. अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम हम लोग खुद से ट्राई करना चाहते हैं. तो मैं तो आपको एनकरेज कर ही रही हूँ बच्चा, गिव इट अ ट्राई बाय योरसेल्फ, गिव इट अ ट्राई बाय योरसेल्फ. अगर आप खुद से करोगे तो आप ज्यादा अच्छा काम करोगे. और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको चीजों को समझाना. और अगर आप खुद से अच्छा काम करते हो तो आई थिंक आई विल बी मोर देन हैप्पी. अब ये वाली जो केस है यहाँ पे देखो 0 0 वाला जो केस है वो तो हम लेंगे ही लेंगे. आपको यहाँ पे एक चीज और मैं सिखा रही हूँ कि हम एक इक्वेशन में, जैसे इस इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करती हूँ एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y. ठीक है. जैसे यहाँ पे मैं क्या करूंगी, y को आप एक लेफ्ट साइड पे रहने दीजिए और 2x को शिफ्ट कर दीजिए. सो दिस इज 6 - 2x. ठीक. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, अब हम x को कोई भी वैल्यू देंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मेरी आती जाएगी.
अब 0 0 के लिए तो ये जो गिवन फॉर्मेट था वो ज्यादा आसान रहेगा, बट उसके अलावा जो हम वैल्यूज निकालेंगे उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मेट काफी इजी होगा। चलिए सबसे पहले हम x को 0 पुट करते हैं। अगर मैं x को 0 पुट करूंगी तो 2 इंटू 0 0 एंड y इज इक्वल टू 6 ओनली। तो जो हमारा जीरो वाला केस होता है वो सबसे आसान होता है, और उसको प्लॉट करना तो और भी आसान होता है। तो 0,6 सेकंड y को 0 डाल दीजिए। अगर मैं y को 0 डाल देती हूँ तो 2x विल बी 6 एंड x क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2 विच इज 3। सो दिस इज सेकंड सॉल्यूशन 3,0। चलिए जी नेक्स्ट सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन किसी बच्चे ने निकाला? यस, many of you have already solved the next solution। अब ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था 0 0 के लिए ये वाला फॉर्मेट ज्यादा आसान होता है, बट अब फॉर द कमिंग सॉल्यूशंस हमें ये वाला इक्वेशन लेना ज्यादा इजी रहेगा। तो चलिए मैं x को पुट कर रही हूँ 1। ठीक, x को अगर मैं यहाँ 1 पुट कर देती हूँ तो y जो होगा वो मेरा हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 मेरा क्या होता है 2। तो दिस इज 6 माइनस 2 विच इज 4। इजी था ना? तो अगर आप इक्वेशन की दोनों तरफ मैनेज करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो इट आई वुड रिकमेंड एक वेरिएबल को एक साइड छोड़ के बाकी सब टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं करनी ना, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन। सो दिस इज द बेस्ट चॉइस दैट आई हैव। सो 1,4। ओके ओके ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, क्या चाहते हो? x को 2 डाल दें? चलो जी x को 2 डाल देते हैं, जब आप इतने प्यार से बोल रहे हो तो x को 2 डाला जाए। इट विल बी 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 6। बहुत आसान बन गया ना? अब ये 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 इंटू 2 4 होता है भैया। 2 2 जा 4, 4 को माइनस कर दो दूसरी तरफ, दूसरी तरफ मतलब 6 माइनस 4, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 2 2। वाओ, x 2 तो y भी 2। and if you want to put these values in the given equation, please cross check your answer will satisfy the equation, and if it doesn't, कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो गड़बड़ है। चले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक और इसने कुछ नया ही स्यापा दे दिया है। बोलो पाई दे दिया। पाई क्यों दे दिया इसने? अरे बाबा, एग्जामिनर की मर्जी है, हम अपनी मर्जी से तो नहीं चल सकते ना, हमें एग्जामिनर के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, मस्त मस्त स्टेप बन रहे हैं, मैं भी यही देख रही थी, काफी अच्छे अच्छे स्टेप बना दिए मैंने। कोई बात नहीं, वी आर सेविंग द शीट। अब हम क्या करेंगे? अब ये वाला जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑलरेडी आपका आई एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2 है। तो अगर आप चाहो तो इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो y इज इक्वल टू पाई एक्स माइनस 2 में, एंड इफ यू डोंट वांट देन यू कैन कंटिन्यू इन द सेम इक्वेशन एज द गिवन फॉर्म। तो आपको मैंने बोला था 0 0 जो होता है वो इस फॉर्म में ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाती हूँ। तो अगर मैं x को 0 ले देती हूँ, देखो अगर मैं x को 0 ले देती हूँ तो y कितना हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू पाई विल बी 0 एंड 0 माइनस 2 विल बी माइनस 2। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास 0 माइनस 2। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 0 माइनस 2। अगर किसी बच्चे को एतराज है तो बोल सकता है। देन y को 0 ले दीजिए, y को 0 ले दीजिए। अगर मैं y को 0 रखती हूँ तो पाई x इज इक्वल टू 2। 0 प्लस 2 2 होते हैं ना, तो मैंने 0 को छोड़ दिया। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 डिवाइडेड बाई पाई। अब यहाँ पे मुझे कोई न्यूमेरिक तो सॉल्व करना नहीं है, तो मैं 2 अपॉन पाई को फाइनल आंसर छोड़ सकती हूँ। अगर ये बोलेगा वैल्यू पुट करो तो कर देना, अदरवाइज देयर इज नो नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटा जी, बोलो क्या पुट करूँ मैं? बोलो बोलो, x को 1 पुट कर दूँ? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट करती हूँ तो आई विल गेट डायरेक्टली आंसर, मुझे बहुत ज्यादा चीजों को शफल नहीं करना पड़ेगा। तो देखो मैं x को 1 पुट कर रही हूँ तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी पाई माइनस 2। ठीक है ना? और एक सॉल्यूशन आप लोग खुद करना चाहोगे? x को आप क्या ले सकते हो? 2 ले लो, तो 2 पाई माइनस 2 विल बी द आंसर। तो आई एम राइटिंग द फोर्थ सॉल्यूशन हियर। x 0 था तो y माइनस 2 था, उसके बाद x 2 बाई पाई एट y इज इक्वल टू 0, एंड देन थर्ड x की वैल्यू हमने 1 ली थी तो y की वैल्यू हमारे पास पाई माइनस 2 आई थी। और नेक्स्ट अगर आप चाहें तो x की वैल्यू 2 ले सकते हैं और y की वैल्यू 2 पाई माइनस 2 आ जाएगी। एंड अब इस तरीके से यू कैन फाइंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। प्लीज ध्यान दो, वी कैन फाइंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, डोंट वरी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा ज्यादा मजा आना चाहिए। क्यों मजा आना चाहिए?
आपको यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 2y दिया है, तो मेरे को अगर ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में दिया होता तो ठीक था, है ना। बट अब ये मुझे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में तो दिया नहीं हुआ, तो इसका मतलब मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हिसाब से यहाँ पे x 3x प्लस 0y इज इक्वल टू -2 करना है। ओके, थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे अगर आप y को 1 पुट कर दो, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ ना तो मेरा x का जो आंसर आ रहा है वो -2/3 आ रहा है। ध्यान दो, x का आंसर -2/3 आ रहा है, तो ये आंसर अब चेंज नहीं हो सकता। और यहाँ पे अब अगर आप y को 1 दोगे तो भी x की वैल्यू -2/3 आएगी। ठीक है, y को आप -1 दे दीजिए, देन ऑल्सो y को अगर आप -1 दे देंगे, मैंने यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अभी आपको मैंने खुद ही वो बोला था कि ऑर्डर्ड पेयर जो होता है इसमें x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में आती है। सो x की वैल्यू पहले लिखेंगे, दिस इज -2/3 एंड y की वैल्यू 0, एंड देन x की वैल्यू तो यही रहेगी, y की वैल्यू आप 1 भी रखोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद x की वैल्यू -2/3 एट y इज इक्वल टू 2, and if you want to take one more, then x की value -2/3 at y is equal to 4. So you can choose any value of y, but value of x will remain the same. It is -2/3. So this is the difference in this question as compared to the all other. So I hope तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ गया है जो बोला जा रहा है। तो हमने अभी एक्सरसाइज 4.2 का कंसेप्ट किया है, in which we are finding solutions of linear equations in two variables. And how many solution does it have? It can have many solution. Many मतलब infinitely many solution. ठीक, चलिए नेक्स्ट मूव करें। देखिए क्या है हमारे पास। अब ये बोल रहा है वी हैव टू चेक, जैसे अभी प्रीवियस शीट में हम लोगों को सॉल्यूशंस निकालने को बोला गया था, बट इस शीट में हम लोगों को चेक करना है इफ द गिवन सॉल्यूशंस विल वेरीफाई द इक्वेशन, या फिर यू कैन से इफ द गिवन सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। तो इसको चेक करने का जो तरीका होता है, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। ठीक है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 0 0 के लिए चेक करते हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पे x को 0 डालूंगी और y को भी 0 डाल दूंगी तो विल इट बी 8? देखो 0 इंटू 2 0, 5 इंटू 0 0, नो दिस इज नॉट इक्वल टू 8, 0 इज नॉट इक्वल टू 8, तो दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला जो है नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। उसके बाद हम आते हैं 4 0 पे, तो 2 इंटू एक्स की प्लेस पे 4 पुट कर दो, 5 की प्लेस पे 0 पुट कर दो, आप चेक करो इज इट 8? देखो 2 4 सा 8, 5 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 8, तो देखो 8 दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में 8 8 आ रहा है, तो यस दिस इज द सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस की लिस्ट बना रही हूँ, सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन की लिस्ट बना रही हूँ। फर्स्ट जो हमें वेरीफाई करना है दिस इज 4 0। अब इसने नेक्स्ट दिया -4 0, तो 2 की प्लेस पे -4 डालेंगे और 5 की प्लेस पे 0 डालेंगे और हमें 8 के लिए वेरीफाई करना है। अब एक चीज का ध्यान रखना, हमने ऑलरेडी 4 0 ट्राई कर लिया था और वो उसका सोल्यूशन था, तो आपका ये पॉइंट ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, जहां पे आपका y 0 है x 4 ही होगा, इट कांट बी एनी अदर कांस्टेंट। तो ध्यान रखिएगा -8 plus 0, so no, this is not the solution. तो third part आपका no, it is not the solution. Then fourth part के लिए हम लोग ट्राई करेंगे -2 and 2.4, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 से एंड 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.4 से, और हम लोग चेक करेंगे वेदर द सम इज 8 और नॉट। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 इंटू 2 4 विद नेगेटिव साइन। अब 2.4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 प्लस 12, 12.0 एक डेसिमल है ना। अब 12 माइनस 4 कितना होता है 8, सो यस दिस इज द सॉल्यूशन। तो आपका नेक्स्ट सॉल्यूशन यहाँ पे जो वेरीफाई हो रहा है दिस इज -2 पे 2.4। So without putting the value, sometimes it is difficult to say yes or no. So it would be better when you put the answer, solve it, and then tell if it is or not. Then next हम fifth part ले लेते हैं। तो fifth part के लिए हम लोगों को जो x का वैल्यू दिया हुआ है this is 1.5. So 2 into 1.5 plus
5 into 1 हमें ये चेक करना है इज इट गिविंग 8, तो 1.5 2 1.5 का डबल क्या होता है 3 एंड प्लस 5। काफी बच्चों को लग रहा था डेसिमल है, पता नहीं होगा कि नहीं, वन डेसिमल ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो देखो जी आ गया, this is 8 only. The third solution which is very fine is 1.5 and 1. And the last part is root 2. Sometimes some of the students get like bit conscious when there is some decimal or root or fraction, but this is just the game of practice. ठीक है, so आप अगर थोड़ा ध्यान से करोगे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा क्या दिया हुआ है, आपका हाथ उस कंसेप्ट में क्लियर होना चाहिए एक्चुअली। चलें चेक करें। so this is 2 into root 2, 2 root 2, 2 minus root 2 into 5 will be minus 5 root 2. So देखो 2 root 2 minus 5 root 2 is minus 3 root 2. So this is not equal to 8. This is not the solution. Clear? So we have out of 6 we got 3 as the solution of the linear equation and 3 were not the solutions. Now in this question it is asking write 3 more solution of the above equation. तो देखो यहाँ पे अब जो सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं हम उनको नहीं करेंगे, बाकी सॉल्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो y0 के लिए x की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर दो। ठीक, तो हमारी जो इक्वेशन है वी विल जस्ट राइट इट हियर 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। अब देखिए x को 0 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 8, तो 2 इंटू 0 0 होता है। अब ये वाला 5 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 8/5। अगर आप चाहो तो डेसिमल कन्वर्जन दो, अगर आप नहीं चाहते तो लीव इट ना, जरूरी कोई है। सो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 0 के लिए 8/5। तो ऑलरेडी हमने 3 सॉल्यूशन वेरीफाई कर दिए थे, उसके बाद हम नेक्स्ट सॉल्यूशन और वेरीफाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग क्या ले सकते हैं, ऐसी वैल्यूज चूज करिएगा जो ऑलरेडी हम लोगों ने यूज ना की हो, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, y को 1 हम ले चुके हैं, तो 5 को हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, y को 2 ले लेते हैं। तो अब 2x plus 5 into 2 is equal to 8. Some students are saying, ma'am, this is actually quite easy. और कुछ बच्चों को अभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है कंपैरेटिवली। सो सब बच्चे try to take your pace, थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करो। 5 2s are 10 is equal to 8. Now we will shift this 10 on the right side. तो 2x जो होगा this is 8 minus 10. 8 minus 10 कितना होता है, -2। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड x की वैल्यू 2 आपका लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड में आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -2 अपॉन 2 -1। तो नेक्स्ट सोल्यूशन हमें जो मिला -1 के अगेंस्ट 2, एक और बचा है, एक सॉल्यूशन और बचा है। तो y की वैल्यू ले लो। y को हम लोगों ने यहाँ पे क्या नहीं लिया है, क्योंकि ऐसी वैल्यू को चूज करो जो हमने y को यहाँ पे ना लिया हो। तो y को वैसे हमने अभी तक -2 भी नहीं लिया था, -1 भी तो ट्राई कर सकते हैं, हाँ -1 भी ट्राई कर सकते हैं। तो y को -1 ले लो, तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू -1 इज इक्वल टू 8। अब ये 5 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -5। तो राइट साइड पे आके आपका क्या बन जाएगा, +5। सो 8 + 5 कितना होता है, 8 2 10 3 13। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13/2। सो आई एम जस्ट लीविंग दिस एज अ फ्रैक्शन। सो -1 y के लिए x की वैल्यू 13/2। ओके जी, सो दिस इज 3 more solution of the same equation. We find 3 more solution of the same equation. नेक्स्ट स्टार्ट करें। अभी हम लोगों ने क्या क्या किया है, रिवाइज करवाओगे मुझे। फर्स्ट हमने व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, नंबर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, नंबर 3 बोलो writing the coefficients a, b and the constant c, and the fourth thing that we have done, finding the solutions of the linear equation. And a linear equation can have infinite many solutions. And just now we checked some of the solutions if they are the solution of given equation or not. Okay, so we have done this much concept. अभी हम 4.1 और 4.2 के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं, अभी हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए। थोड़ा सा ध्यान से करना क्वेश्चंस, ये वाला चैप्टर आपका जहाँ पे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वहां पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज मोस्टली दीज आर इजियर वन। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल इफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज गिवन। तो मुझे यहाँ दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ q इफ
-2 -1 is a solution of the equation 2x minus y is equal to q. 2x minus y is equal to q. ओके बच्चा, अब यहाँ पे हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, बिकॉज -2 -1 इज गिवन एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. So this is the ordered pair abscissa comma ordinate. So in place of x I will put abscissa, value of abscissa, and in place of y I will put ordinate. And when I put abscissa and ordinate in this equation, तो x और y आपका constants में shift हो चुका, तो you will find the value of q. तो करें कैसे करते हैं इसको, तो देखो हम क्या करेंगे, टू पहले हम एक बार इक्वेशन फिर से रिपीट कर लेते हैं. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. अब हम ये कह रहे हैं 2 की प्लेस पे आप क्या पुट कर, x की प्लेस पे क्या पुट कर दोगे -2, और y की प्लेस पे आप क्या पुट कर दोगे -1. सो प्लीज प्लीज बी केयरफुल, मेक यूज ऑफ द ब्रैकेट्स, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. काफी बार बच्चे क्या करते हैं, इस वाले नेगेटिव को ध्यान ना देके y की वैल्यू -1 लिख देते हैं और आपको दो नेगेटिव साइन पॉजिटिव बना रहे हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा. तो 2 इंटू टू -4, क्योंकि एक नेगेटिव साइन था ना, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस होता है, और माइनस इंटू -1 विल बी प्लस, माइनस ऑफ -1 विल बी +1. सो दिस इज इक्वल टू q. यस, वी गॉट द वैल्यू ऑफ q. हाँ जी, क्या वैल्यू आई है q की हमारी, -4 + 1. सो दिस इज -3, दिस इज -3. फाइनल आंसर को मैंने ब्लॉक में डाल दिया है. ध्यान रखना कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. जनरली अगर आपने क्वेश्चन में कोई मिस्टेक, कटिंग वगैरह नहीं की है, फॉर्मूला ठीक से पुट किया है, फाइनल आंसर को ब्लॉक बना दिया है, यू विल गेट दी फुल मार्क्स. Next question, it is asking for the value of k so that x is equal to 1 and y is equal to 3 is a solution of this one. This one बोले तो 5x minus 2y plus k is equal to 0. So this is just the rhythmic. Okay. जितना एंजॉय करोगे क्वेश्चंस के अंदर, एक्चुअली एक जंप लगा लो ना, स्विम कर लो ना, मजा आ जाएगा. कितनी जल्दी क्वेश्चन होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. हाँ सीरियसली मजाक नहीं कर रही हूँ, एक बार इसमें स्विम करके देखो, मजा आएगा. तो देखो अभी अभी मैंने बोला था, हाँ जी बहुत सारे बच्चे तो इसका आंसर भी निकाल चुके हैं. वो बोल रहे थे मैम आप अभी थोड़ा सा बातें करो बाकी बच्चों के साथ, हम अभी आपको आंसर निकाल कर ही दे देते हैं. आप इतनी देर से इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा तो हम कर लेते हैं. सो थैंक यू सो मच मेरा बच्चा. एंड बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर मुझे दिया है, वेरी गुड. सो दिस इज 5 1s are 5, 2 3s are 6 plus k is equal to 0. नाउ 5 minus 6 कितना होता है बच्चा पार्टी, ये जो मैंने बनाया ना, दिस इज कॉल्ड विच एम्प्लॉय, मतलब नेक्स्ट स्टेप ये होगा. सो 5 minus 6 is -1 plus k is equal to 0. So मैं -1 को शिफ्ट कर देती हूँ on the other side and I will get value of k. This is +1. देखो ना, जीरो लगाने की क्या जरूरत है, 0 + 1 1 ही तो देगा. तो आपकी मर्जी है, बाकी आई वुड नॉट रिकमेंड, वी आर इन क्लास 9th ना, तो जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आपका बिल्कुल सेम टोन पे क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. पहले हमने क्यू की निकलवाई, फिर के की निकलवाई, अब ए की निकलवा रहा है. अरे बाबा, नेक्स्ट में बी की निकलवा रहा है, तो सारे अल्फाबेट हमसे सॉल्व करवाने वाले हैं ये लोग. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 2x plus y is equal to a passes through the point 3, 5. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में एक ही चीज हो रही है, सबका सेम हम सॉल्यूशन फॉर्मेट बना रहे हैं, बट हर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट वो दिया हुआ है वो थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है ना. स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना होगा, स्टेटमेंट ध्यान से रीड करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है. चलिए ए की वैल्यू निकालें. 2x plus y is equal to a passes through point 3, 5. तो 2 इंटू एक्स की प्लेस पे क्या पुट करना है 3, और y की प्लेस पे क्या पुट करना है 5 इज इक्वल टू ए. ये तो कांस्टेंट है ना जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो ए को तो कुछ नहीं रख सकते हम. तो देखिए 2 इंटू 3 कितना होता है, 2 3 6, और 6 में 5 को अगर मैं ऐड कर दूं 11. हाँ जी, एक ही स्टेप में आंसर निकल आया बच्चा, एक ही स्टेप में, ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा. कितना आसान है 1 मार्क का क्वेश्चन, मे बी 2 मार्क का आ गया तो यू नेवर नो. Next question, if the point 4, 4 lie on the graph of equation 3x plus by plus 7, then find the value of b. Now please ध्यान रखना, ग्राफ जो है वो हमारा थर्ड एक्सरसाइज का पार्ट है, सो अभी हम उसको थोड़ा सा लेटर सेक्शन में करेंगे. तो यहाँ पे हमें बोला है 4, 4 इज द सॉल्यूशन, मतलब लाइज ऑन द ग्राफ का मतलब दिस इज द सॉल्यूशन. तो अब आप क्या करेंगे,
x की वैल्यू भी 4 पुट करनी है और y की वैल्यू भी 4 पुट करनी है, लाइक दिस। ओके जी, अब सब चीजें एक तरफ शिफ्ट कर दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। सो 3 4s आर 12 और ये 7 यहाँ आके माइनस हो जाएगा एंड b into 4 will be 4b। सो 12 minus 7 5 और ये वाला 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो व्हाट वी गॉट वैल्यू ऑफ b as 5/4। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम इतने सारे क्वेश्चंस भी करवाने की जरूरत नहीं है, अब हम तो एक्सपर्ट हो गए हैं। एक्सपर्ट मैं तभी मानूंगी जब आप पेपर में इस टॉपिक में फुल मार्क्स लाओगे, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन चल रहा है बट इसने कुछ ट्विस्ट दे दिया, ट्विस्ट। ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच दिस हैज 1 -1 एज अ सॉल्यूशन। So equation 2x plus ky is equal to 5 has 1 comma minus 1 as the solution। तो k निकालना है। बाकी क्वेश्चन अभी जो इतने सारे किए थे इसमें कोई डिफरेंस है? नो, सिमिलर टू। इट इज आस्किंग, कुछ और भी पूछ रहा है यार, फाइंड टू मोर सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन ऑब्टेन्ड। So basically, firstly we have to find the value of k using the given solution, and after that we have to find two more solution, है ना, टू मोर सॉल्यूशन। तो प्लीज, कभी कभी क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 3 मार्कर का पेपर में आ जाता है, बच्चे के की वैल्यू निकाल कर उनको ऐसा फील होता है हमने निकाल दिया, हमारा सॉल्व हो गया। तो थोड़ा ध्यान से पेपर रीड करना, जो चीजें पूछी जाती है निकालने के लिए उनको अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख कर रखना। सो 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 5। अब आपको x की प्लेस पे तो 1 पुट करना है एंड y की प्लेस पे आपको -1। तो 2 1 जा 2, 2 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस के इज इक्वल टू 5 -2। तो 5 -2 कितना होता है हमारा 3। तो के की वैल्यू आ जाएगी 3 और ये नेगेटिव साइन इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, तो दिस विल बी -3। तो एक्चुअली 3 डिवाइडेड बाय -1 जो है वो -3 के इक्वल हो जाता है ना, क्योंकि नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी हेल्प से? इट विल बी 2x minus 3y is equal to 5। 2x k की प्लेस पे मैंने -3 पुट कर दिया, तो -3y is equal to 5। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वी वांट टू सॉल्व दिस, वी वांट टू फाइंड टू मोर सॉल्यूशंस। सो यस, कम कम, आई एम वेटिंग, हरी अप। देखो जी, मेरे से पहले करोगे तो ठीक है, बाद में ही करना है तो मैं पहले कर दूंगी। हाँ, मैं स्लो करूंगी, ये पक्का मैं स्लो करूंगी, है ना। अगर मैं स्लो करूंगी तो इसका मतलब आई एम गिविंग यू दी अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व। तो मैं तो देखो x को 0 प्रेफर करूंगी, x को 0 दूंगी तो ये 0 हो जाएगा, 0 -3y जो है वो 5 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी -5। अब आपको जब सिर्फ सॉल्यूशंस निकालना होता है तो ऐसा सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हेन वी हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट ऑन द ग्राफ, इन दैट केस वी विल ट्राई आइदर टू फाइंड द होल नंबर और द proper decimal places। Otherwise, -5/3 would be a bit difficult to plot exactly on the graph, क्योंकि repeating decimal है ना, तो उसमें आप बिल्कुल exact point नहीं बना पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक और सॉल्यूशन निकालें। कौन बच्चा इंटरेस्टेड है बोलो। x की वैल्यू -1 दे दूं, ठीक है जी, -2 दे दूं, ओके जी। कुछ और? x की वैल्यू बच्चे बोल रहे हैं -2 दे दो, तो -2 दे देते हैं। 2 into -2, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, सो दैट ओनली डिपेंड्स आप ठीक से सॉल्व करें। तो 2 into 2 4 होता है, -4 राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा। अच्छा, अब आप इसलिए बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पे 3 का मल्टीपल बन रहा था। तो 4 + 5 is 9 divided by -3, 9 divided by -3, तो -3। So I got two solution, two more solution. In fact, I should say one is x0 के लिए y की वैल्यू -5/3 and the other pair x की वैल्यू -2 के लिए y की वैल्यू -3। So if you want, you can find two more solution. It's completely fine. The overall objective that you are able to handle these questions, है ना। अगर आप क्वेश्चंस ठीक से हैंडल नहीं कर पाए तो इस लेक्चर का कोई फायदा तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, ठीक है, एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, तो इसका मतलब होता है y विल बी ऑन दी वन साइड एंड अदर विल बी शिफ्टेड ऑन दी अदर साइड। तो यहाँ पे हम
एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x का मतलब होता है, देखो y को मैं लेफ्ट साइड पे रहने देती हूँ, -2x और -7 को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगी, तो -2x राइट साइड पे आके +2x बन जाएगा, -7 राइट साइड पे आके +7। ओके, सो देखो आई हैव रिटन y इन टर्म्स ऑफ x, क्लियर। यहाँ पे अगर ये बोलता राइट x इन टर्म्स ऑफ y, तो मैं x को एक तरफ रखती, बाकी सबको शिफ्ट कर देती। तो फर्स्ट पार्ट तो यही था। It is saying check whether the point -3 -2 is the solution of the equation. अब कैसे चेक करती हूँ? बेसिकली द गिवन पॉइंट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर मैं x और y की वैल्यूज डालूं तो इक्वेशन का लेफ्ट और राइट साइड शुड बी सेम, and if it is not matching, then in that case the given point will not be the solution. Okay, तो हम लोगों ने सिमिलर ये वाला टोन अभी किया नहीं था, हम लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड किए थे, या फिर हमें सॉल्यूशंस जो दिए हुए थे उसके अकॉर्डिंग हमने कोई कांस्टेंट निकाला था। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखो y की प्लेस पे आपको डालना है -2, x की प्लेस पे आपको डालना है -3 +7। नाउ वी विल जस्ट कंपेयर, देखो लेफ्ट साइड पे हमारा है -2 एंड 2 into 3 विद नेगेटिव साइन, तो -6 + 7, -2 आ रहा है मेरा लेफ्ट साइड पे और 1 आ रहा है मेरा राइट साइड पे, आर दे इक्वल? So basically this is not satisfying the given condition, and we can say -3 -2 is not the solution, is not the solution of given equation, -3 -2 is not the solution of given equation. Okay, so our next question is check whether the point a minus a lies on the graph y is equal to x minus a or not. Okay, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, बिल्कुल सिमिलर जैसा पहले क्वेश्चन में किया था, हम लोग x की प्लेस पे पुट करेंगे a और y की प्लेस पे पुट करेंगे माइनस a, and if left and right side of the equation matches then it's okay, and otherwise this is not the solution. तो चलिए पुट करें, y की प्लेस पे देखो मैं क्या डालूंगी, माइनस a, x की प्लेस पे क्या डालूंगी a। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम कांस्टेंट होता तो इजी था, अभी तो वेरिएबल और वेरिएबल में ही दिया हुआ है, सो इट्स कंप्लीटली फाइन यार, 2-4 क्वेश्चन करोगे तो यू विल बी कंफर्टेबल विद द स्टफ। तो देखो x की प्लेस पे मैंने a डाला, y की प्लेस पे -a, तो a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज -a ऑन द लेफ्ट साइड एंड a से a कैंसिल होने का मतलब 0 ऑन द राइट साइड, -a 0 -a 0 not equal, so no, this is not the solution. a minus a, हमें ये क्या बताना था, दिस लाई ऑन द ग्राफ, तो दिस doesn't lie, this doesn't lie on x, y is equal to x minus a. Okay जी, next question, check whether the graph of equation this passes through the origin or not. Check whether the graph of the equation passes through the origin or not. अब passes through the origin, origin जो वर्ड दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अभी हमें प्रीवियस जो 2 क्वेश्चन दिए हुए थे ना उसके अंदर अंदर हमें वैल्यूज कुछ दी हुई थी, बट यहाँ पे हमें वैल्यूज ना देके एक ओरिजिन नाम का वर्ड दिया गया है, तो you are already aware that coordinate of origin is 0, 0. So instead of giving the point, they said origin. So I think you are very much comfortable now. So we will put x0, y0, and you can clearly see if I put y0 and x is also 0, so is it satisfying the condition 0 on left and 5 on right? No. तो हम क्या बोलेंगे, no the graph, no the graph of the equation y is equal to 3x plus 5 will not pass through origin, ठीक है, through origin और 0, both are one and the same. तो आपको जो फाइनल आंसर देना होता है वो जो गिवन स्टेटमेंट होती है उधर से सेम देना होगा, अदरवाइज टीचर जो है वहाँ पे मार्क्स काट सकती है अगर जस्ट इन केस यू वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। नेक्स्ट इक्वेशन बोल रहा है राइट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस इन टू वेरिएबल, सो दिस इज एक्चुअली the linear equation in one variable, but we have written it in the form of two variable by introducing 0.
अब इस तरह का एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, +8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपका x का जो वैल्यू है यहाँ से 0 इंटू वाई, तो बेसिकली सिर्फ एक प्लेस फिल करने के लिए है, 0 इंटू समथिंग विल बी 0 एंड 0 प्लस में अगर आप दिखाते हैं तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो यहाँ से अब आपका ये जो 8 है ये शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, तो -8, और ये जो 5x है वो -8 के बराबर है, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -8/5। तो इन जनरल जब आपको वन वेरिएबल का फॉर्मेट दिया होता है ना, तो उसको आप पहले x या y जिसमें भी आंसर निकालना निकाल लीजिए। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू, मतलब ऑलवेज इट विल बी -8/5 एंड वी कैन असाइन एनी वैल्यू टू y। तो देखो अगर मैं y को 1 दे देती हूँ, y को 1 दे दो, तो स्टिल x विल बी -8/5। अगर मैं y को 2 दे देती हूँ, तो 0 इंटू 2 0, तो x इज अगेन -8/5। अब y को आप -1 दे दो तो भी वो सेम रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशंस जो लिखेंगे, x की वैल्यू ऑलवेज रिमेन द सेम एंड यू कैन राइट एनी वैल्यू अगेंस्ट y। यू कैन राइट एनी वैल्यू, मैं यहाँ पे -2 भी लिख सकती हूँ, मतलब इट्स कम्प्लीटली माई चॉइस, सीरियसली। तो ये वाला क्वेश्चन जो होता है, इसका जो ग्राफ आता है ये काफी हाई वेटेज, मतलब 3 और 4 मार्कर में भी आ सकता है। तो वी विल प्लॉट दीज ग्राफ व्हेन वी डू द वर्क ऑफ एक्सरसाइज 4.4। ठीक, तो यहाँ पे अब माइनस को दे देती हूँ। So they asked for two solution, and like without any hassle we were able to write 4 solution, and you can write as many as you like। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, अभी तक हम लोगों ने जो काम किया था अभी उससे बिल्कुल रिवर्स पे पहुंच रहे हैं हम। ये बोल रहा है राइट द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। तो ये जो है आपका 4.3 एक्सरसाइज पर बेस्ड कंसेप्ट है, जहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिया होगा और हमें इक्वेशंस फ्रेम करनी है। अब एक जो सिंगल पॉइंट होता है, मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, एक ये सिंगल पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, तो इस वाले पॉइंट से ना इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं इस तरीके से, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू दिस। तो आपका यहाँ पे जो एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है 2D प्लेन में, we can write infinite many equations against this which will pass through this point। तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, देखो x प्लस वाई। तो मैंने क्या किया, ये जो है ये एब्सिसा है और ये जो है ऑर्डिनेट है, ठीक, इनमें मैं डिफरेंट फॉर्मेट बनाती चलती हूँ। देखो x y, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, this is a bit tricky part, so attention here। Again I am writing x minus y, come on 5 minus 2। अब सीसा ऑर्डिनेट जो हमें दिया हुआ है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, हमें उनको इस तरह से अरेंज करना है, वी विल बी एबल टू फ्रेम इक्वेशन। तो मैंने जब दोनों को ऐड किया था तो 5 + 2 7 होता है, अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो 5 - 2 3 होता है। अब बच्चे बोल रहे हैं ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, अब क्या करूँ, मल्टीप्लाई तो करोगी नहीं, देखो मल्टीप्लाई करते लीनियर इक्वेशन तो बचेगी नहीं वो। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे x प्लस 2y भी तो लिख सकते हैं ना। तो x प्लस 2y का मतलब क्या हो जाएगा, x विच इज 5 प्लस 2y विच इज 2 इंटू 2, so this is equal to 2 to the 4 plus 5 9। तो आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। Not magic? Oh, you can do any experiment, but make sure गलत मत करना, फिर कहीं बोलो आप ही ने बोला था, बोला तो मैंने ही था, बट ये भी बोला है ठीक ठीक करने को। अभी हम क्या करते हैं, फिर से कुछ करें एडवेंचरस सा। सो x माइनस 2y, अब चेक करो x माइनस 2y कितना आएगा। x की प्लेस पे 5 ही होना चाहिए, y की प्लेस पे 2 ही होना चाहिए, तो 5 माइनस 4 दिस इज 1, तो दिस इज द फोर्थ। तो देखिए इसने हमें 2 इक्वेशंस बोला था, बट फ्लो इतना अच्छा, इतना जबरदस्त फ्लो बना था, हम लोगों ने 4 इक्वेशंस ली, है ना बच्चा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। आई वुड रिकमेंड पहले आप प्लस वाला साइन लो, फिर आप माइनस वाला साइन लो। आप इनफैक्ट वेरिएबल्स को एक्स वाई को वाई माइनस एक्स भी कर सकते हो, सम में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज सम इज कॉम्यूटेटिव। सो एक्स प्लस वाई लूँ या वाई प्लस एक्स लूँ, इट विल मेक द सेम इक्वेशन, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट यस, if I take x minus y or if I take y minus x, it will make a different equation। So wanna try? चलिए जी, x plus y, come on, 12 plus 4 16, then x minus y। ये तो मैंने बनाना ही था ना, आसान है यार, हमेशा अगर मैं ऐसे एक ही तरीका से कहूंगी तभी तो तुम्हें पता चलेगा हो क्या रहा है।
4 माइनस 12, दिस इज -8। तो सेकेंड इक्वेशन मेरी बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू -8। तो अभी अभी मैंने आपको बोला था हम x माइनस वाई को y माइनस एक्स में भी तो ट्राई कर सकते हैं ना, y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज 12 माइनस 4, रिवर्स हो गया ना, तो दिस इज 8। तो थर्ड इक्वेशन मेरी बन जाएगी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। साइन का डिफरेंस है, इट इज अ मेजर डिफरेंस एक्चुअली। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कॉमन कॉमन कॉमन, बहुत सारे बच्चे बोले मैम हम बनाना चाहते हैं, सो कम ऑन ना, मैंने कब बना किया, 2x प्लस वाई। हाँ यार, 2x का मतलब 2 इंटू फोर, 2 इंटू फोर कितना होता है 8, 8 में 12 ऐड कर देंगे। देखो 2 इंटू फोर प्लस 12 कितना होता है, दिस इज 20। सो दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन, दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन। चले, अब आप सेम ये जो दो क्वेश्चन मैंने किए हैं इन दोनों पर आप अपनी तरफ से मुझे दो दो इक्वेशंस और बनाकर शेयर करिएगा, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.3 पर बेस्ड है, जो अभी काम किया है उसी का रेप्लिका है। ये बोल रहा है इफ द लीनियर इक्वेशन हैज दिस सॉल्यूशंस देन व्हाट इज द इक्वेशन। तो अभी हमने क्या किया था, हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस की बेस पे इक्वेशन फ्रेम की थी। अब वही चीज है बट इट हैज गिवन अस 3 सॉल्यूशन एंड वी हैव टू फाइंड द सिंगल इक्वेशन व्हिच विल सैटिस्फाई दिस। ऐसे वाले केस में जैसे यहाँ पे 0 0 आ रहा है, तो 0 0 जो होता है उसमें इक्वेशन का जो फॉर्म होता है y इज इक्वल टू mx, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म एक और तरीके से लिखा जाता है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द कांस्टेंट, x टर्म y टर्म। तो ये एक और तरीका होता है। तो यहाँ पे अगर आपका कांस्टेंट मिसिंग है और यू कैन से ax प्लस by इज इक्वल टू 0, तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन है आपका जहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म आई मीन टू से, देन दैट इक्वेशन पासेस थ्रू ओरिजिन बिकॉज x 0 होते ही y भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, यहाँ x0 y0 है, तो आपकी इक्वेशंस में तीनों इक्वेशन ऐसी दी हैं जहाँ पे एक्चुअली कांस्टेंट टर्म नहीं है। 0 इज नॉट एक्चुअली द कांस्टेंट इन दिस केस, क्योंकि 0 मेरे को वो पॉइंट नहीं देगा। तो यहाँ से हम लोगों का जो सॉल्यूशन फाइंड करना है, हम लोग क्या करेंगे, तीनों ये जो पॉइंट्स है पहले फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। वी विल चेक इफ, क्योंकि देखो आपके अगर एक पॉइंट होता तो इस सारी इक्वेशंस में से पास हो सकता था, 2 पॉइंट होते तो भी ऐसा हो सकता था कि क्योंकि 2 पॉइंट आपका एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, बट अगर आपके तीनों पॉइंट एक सिंगल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो दैट विल बी एक्चुअली द सॉल्यूशन। चलिए, तो आप यहाँ पे देखो x की प्लेस पे -2 और y की प्लेस पे 2 पुट करो, इज इट सेटिस्फाइंग, वाओ। x की प्लेस पे 0, y की प्लेस पे 0, इज इट, वाओ। x की प्लेस पे 2 एंड y की प्लेस पे -2, फर्स्ट इक्वेशन ऐसी दी थी कि जो इन तीनों सॉल्यूशंस को वेरीफाई कर रही है। तो आपको ये पूछ रहा था इफ द लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन दिस देन दिस इज ऑफ द फॉर्म, यस, ए इज द आंसर। अब मेरा आंसर आ चुका है तो मुझे नेक्स्ट पार्ट्स के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट वी कैन गिव इट अ ट्राई। x की प्लेस पे -2 डालो, y की प्लेस पे 2 डालो, तो देखो इज इट, नो, -4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट आपका वेरीफाई नहीं हो रहा तो मैं इसको ये नहीं छोड़ सकती हूँ। सेकंड अगेन -2, x की प्लेस पे -2 डालो और y की प्लेस पे 2 डालो, तो 2 2 4, 4 प्लस 2 6। So is it verifying? No, 6 is not equal to 0, man. So next, माइनस x की जगह पे -2 डालो और y की जगह पे 2 डालो, तो देखो is it verifying? -2 minus of -2 plus 2, this is 2 to the 4, so is it verifying? No. So these all the other 3 equations are not satisfying this solution, so only the first one, so this is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी टोन पे है। आई थिंक बहुत सारे बच्चे तो शायद बोल रहे हैं मैम हम करेंगे हम करेंगे, यस इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड खुद ही ट्राई किया करो। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो खुद ट्राई करोगे, तभी आपको पता चलेगा वेदर यू आर एबल टू अप्लाई द कंसेप्ट और नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में y की प्लेस पे 3 पुट करो और x की प्लेस पे -1 पुट करो। देखो इस इक्वेशन में y को मैंने 3 डाला, x को मैंने -1 डाला, तो लेफ्ट साइड पे 3 है, राइट साइड पे -3, इज इट, नो, दिस इज नॉट इक्वल। सो फर्स्ट इक्वेशन में ये वाले सॉल्यूशन वेरीफाई नहीं हो रहे। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, y की जगह पर 3 डालो, x की जगह पर -1 डालो। अब यहाँ पे दो नेगेटिव साइन है, सो प्लीज बी अ बिट केयरफुल। आप लोग क्या करते हो, नेगेटिव साइन जो होता है इसी को -x की तरह यूज कर देते हो और आप इसमें मिस्टेक कर जाते हो, फिर 1 + 2 हो जाएगा, -1 इंटू माइनस प्लस होता है ना, तो 3 इज इक्वल टू 3, यस दिस इज वेरीफाइड। अब क्योंकि एक सॉल्यूशन वेरीफाई हो गया तो आई विल ट्राई अदर वन एज वेल। अब इसमें 0 2 ट्राई करो,
y की प्लेस पे 2, x की प्लेस पे 0. Yes, this is also very fine. Now come on to the third part. Y की प्लेस पे 0 and x की प्लेस पे 2. तो -2 plus 2 will be 0. Yes, this is again very fine. So B part is the equation of the above solutions. तो नेक्स्ट पार्ट्स के लिए मुझे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन ट्राई सो दैट यू विल बी अवेयर यस आवर आंसर इज करेक्ट. मजा आया? Yes, I also enjoyed working with you. So if you want, you can give it a try in from your NCRT. And if you want some extra question, then just comment me. If you will ask for the questions, I will provide. Okay, thank you.